हम एक डिस्कशन कर रहे थे फंडिंग अ स्पोर्ट्स और फंडिंग एन एथलीट के बारे में, विच इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एज वेल, कि एक पॉपुलेशन बेस्ड लाइक इंडिया जहाँ पे इतना टैलेंट आता है, राइट, हम वी वॉन्ट बी एबल टू केटर टू एवरीवन्स नीड्स, राइट। ऐसा नहीं है कि हमें सारे एथलीट्स ओलंपिक मेडल्स जीत जाएंगे या सिस्टम में आ जाएंगे या हम अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेंगे, राइट। And this obviously boils down to what Hitesh was also saying, the infrastructure, the structure, and how the money is pumped into a specific sport as well. But एक इतने बड़ी कंट्री में 1.6 बिलियन की कंट्री में जो हम वेस्टर्न कल्चर से नहीं कंपेयर कर सकते। बिल्कुल। अगर माइकल फेल्प्स आया, माइकल फेल्प्स से 10 गुना चाहे 1-2 गुना कम टैलेंट वाले भी 50 उनके पास स्विमर्स हैं जो डेली स्विमिंग करते हैं। बट वाई माइकल फेल्प्स केम इनटू द स्ट्रक्चर, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग अदर स्टोरी है जो लोगों को नहीं पता। माइकल फेल्प्स की स्टोरी हो गई, यूसेन बोल्ट की हो गई, लोग माइकल जॉर्डन की बात करते हैं। आई एम श्योर ये सब देखने के बाद दे विल गो एंड एक्चुअली गूगल एंड सर्च दीस एथलीट्स की क्या स्टोरी है, क्योंकि इतनी स्टोरी है। अब एमसी मेरी कॉम की इतनी बड़ी स्टोरी है, वो विजेंद्र सिंह की स्टोरी है। अब how they are perceived in the media is not actually how they are in real life or how they were in the sport, right? वो भी एक टॉपिक है जिस बारे में हम आज सोच रहे होंगे। हमने बहुत सारा रिसर्च किया है and there's a reason we have started series because we have done the research. We have done the discussion as well. But talking to the point you were coming to. Yes, I want to finish the podcast on that point because sports and development से development का बहुत बड़ा relation उससे है कि हमारी आबादी जो है कंट्री की, और वो वेस्टर्न कल्चर से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है, हमारी कंट्री भी बन रहा है, नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट स्पोर्ट्स में उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है। ओवर टू यू Aman. So the starting with the funding part, but I'll link it to the population point you just mentioned. तो हम लोग, and that is very rightly, we have discussed it quite a time, and you actually said it very correctly, कि we will not be able to cater to everybody's needs at every given point. गवर्नमेंट ने वो सिस्टम बनाए हैं, सिस्टम हर किसी की प्रॉब्लम्स होती हैं। वी आर नॉट परफेक्ट, द कंपनी इज नॉट परफेक्ट, बट इवन द कॉर्पोरेट गाइज आर नॉट परफेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देयर इज नथिंग अगेंस्ट कि मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, बट दिस इज द रियलिटी। वी टॉक अबाउट द रियल स्टफ व्हिच इज गोइंग ऑन। वी डोंट टॉक कि मेरे को मार्केट में क्या जा रहा है, पॉडकास्ट ये बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। दिस इज वेरी रियल स्टफ वी आर टॉकिंग, एंड catering to the kind of population size we have, it is actually a benefit for us. Because we have a very unique opportunity to develop a system for specifically for India, which can cater to the needs and wants of each and every athlete that is in the system. Whether they become successful Olympic medalist or not, that is totally up to their talent, we observe. But that, so funding जो हम relate करूँगा, so now I come in and touch in the funding part. So anything that is there in the system, whether from a government point of view or the organizations like OGQ, Go Sports, Lakshya Sport and Reliance Foundation and JSW Sports are doing, that is irrelevant of the fact that वो तो support दे ही रहे हैं. They have understood the evaluation part of, they have evaluated the success and failure points, right? Yeah. They are big organizations investing a lot of money in the kind of people they want to hire, the kind of athletes they want to support, the kind of sponsor they want to bring on board, the partnership angle, the commercial angle. वो evaluation already हो चुका है. But are we giving enough focus on the athletes का education part, right? We were talking a lot about this कि हर एक athlete Olympic medalist नहीं बनेगा, हर एक athlete Asian Games का medalist नहीं बनेगा, but are we educating them enough कि अगर वो athlete नहीं भी रहे, but he can still part of the system, become sports managers like us, even better than us, because we are athletes turned professionals turned podcasters dot content makers and people who do little bit bakwas and serious bakwas. तो नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग, तो वो एक चीज है, एंड द फंडिंग पार्ट विल बी टेकन केयर इन टर्म्स ऑफ व्हेन द प्राइवेट बॉडीज कम इन. तो वो थोड़ा बहुत सर्कल अभी चालू होगा, सिंस लाइक यू पॉइंटेड इन द कन्वर्सेशन कि नीरज चोपड़ा ने जीता, बजरंग पुनिया ने जीता, मीराबाई का मेडल आया, द ओलंपिक टोक्यो 2020 वाज अ बिग सर्कल फॉर अस. दैट गोल्ड केम कमिंग आफ्टर so long, after Abhinav Bindra won the medal for us earlier. तो वो जो है the point is वो funding आएगी, but वो funding से क्या होगा and how many athletes will be educated, because right now हमारे पास बहुत सारे athletes हैं and they are damn talented. I know for a fact that if we get private parties involved या हमारे जैसे कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, they are going to win medals. I mean, Asian Games is just around the corner. Commonwealth is there. Commonwealth तो चलो बाद में आएगा, but next year is Paris Olympics. Then there's Youth Olympics happening.
वर्ल्ड चैंपियनशिप होंगी, एशियन चैंपियनशिप्स होंगे, नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, नेशनल चैंपियनशिप, तो देयर इज द सिस्टम इज इन प्लेस, द पीपल आर वर्किंग बैकग्राउंड में काम करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द फेडरेशन इटसेल्फ who are actually very passionate about the sport and there's a reason they left their corporate jobs, अपना बिजनेस छोड़ के यार फेडरेशन से काम कर रहे हैं, साई में काम कर रहे हैं, आईओए में काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, प्राइवेट बॉडीज में हम लोग भी थोड़े बहुत हो गए हैं, तो नॉट जस्ट दैट, एजुकेशन विल बी अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर मी पर्सनली, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से कितना सपोर्ट जाता है। अगर एथलीट मेरा बोलता है कि नहीं, आई समहाउ वांट टू ड्रॉप आउट ऑफ बिकॉज ऑफ द इंजरी, बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस, डज ही हैव अ प्लेस इन द सिस्टम राइट नाउ? नो, unless and until he is educated और उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, but how many athletes are actually doing it? And that is where the government is also getting involved in doing a lot of stuff, educating them. हमारे डेली बेसिस पे I come from Sai, तो वहाँ पे ये था कि the athletes are actually going to be treated in a very professional way, कि खाना कैसे खाना है, because you are traveling abroad, right? You are sitting with Western athletes, तो वो etiquettes होते हैं, that being taught English, that being taught foreign languages, personality development, तो जो चीजें प्राइवेट एजुकेशन में होती हैं, आई थिंक दैट इज वेयर द एथलीट्स विल आल्सो प्ले अ गुड रोल। एंड कमिंग फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, आई गेस अमन ने मुझे ये आइडिया दिया है, बहुत यूनिक आइडिया था कि एज एन एथलीट मैनेजर दैट इज योर रोल टू इन्वेस्ट टाइम इन द एथलीट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ उनके ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस में आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज द स्पेशलिटी इज विद द कोचेस एंड द फिजियोस एंड दीस गाइस। हाउ मच टाइम आर यू इन्वेस्टिंग इन नोइंग द एथलीट कि उसमें क्या हम करेक्ट कर सकते हैं, कि कोई एथलीट अगर मेरा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, उसकी पर्सनालिटी कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, ये नहीं जबरदस्ती इंग्लिश टूर्स दो, इंग्लिश ही करानी है, बट उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी। आई गेस दैट इज वेयर आर मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड्स, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि कौन सा ब्रांड फिट करेगा, बट वो ब्रांड फिट कराने के लिए मुझे क्या एथलीट पे काम करना है। आई गेस ही गिव अ गुड एग्जांपल ऑफ हिम वर्किंग विद हिज बॉस, एक्चुअली प्रीवियस बॉस, वर्किंग विद अ गुड एथलीट, वो हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। दैट इज समथिंग, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, तो वो एथलीट मैनेजमेंट का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, दैट प्रॉब्ली विल टच बेस। बट आई गेस इन टर्म्स ऑफ जो फंडिंग की हमने बात की, फंडिंग इज देयर, पीपल आर देयर, देयर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। आई गेस द क्रिटिकल पॉइंट फॉर मी स्पेसिफिकली आफ्टर द पैरिस ओलंपिक्स would be how we develop as a nation in terms of supporting our athletes through the whole journey, not just वो मेडल जीता है तो उससे बात कर लो, या प्रेस वाले से आप थोड़ा इंटरेक्शन करवा लो, या ब्रांड एसोसिएशन करवा लो, but our major point will be how we look at the system in terms of robustness and accountability and monitoring once the Paris Olympics over, क्योंकि पेरिस तक तो आप अभी डेवलपमेंट करने जाओगे तो एथलीट का पूरा रूटीन बिगड़ जाएगा, तो हम लोग को वो भी थोड़ा इंडोर्स अपने दिमाग में बिठा के चलना पड़ता है कि थोड़ा जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब ना करें, बिकॉज हम लोग टोटली प्राइवेट सेक्टर से आए हैं। अगर हम ज़्यादा कोचिंग में जाएंगे तो उनका जो डिस्टर्बनेस है और जो कोचेस का जो स्पेशलिटी है वो कहीं मिक्सअप होकर एथलीट का बुरा ना हो जाए, तो वो अंडरस्टैंडिंग भी हमारे में एज एथलीट मैनेजर फाइन लाइन है, क्योंकि हमने उनको खेलना नहीं सिखाना, वो हमारा काम नहीं है, हमें उन्हें उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करना, तरीके से उनकी स्टोरी को बेचना। मैं बेचना इसलिए वर्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि हर एथलीट की स्टोरी है, राइट, चाहे वो क्रिकेटर हो, सचिन तेंदुलकर की भी स्टोरी है, विराट कोहली की भी स्टोरी है, अश्विनी पोनप्पा की भी स्टोरी है, अंजित ठाकुर की भी है, गीता फोगाट की भी स्टोरी है जो आप देख चुके हो, हाँ, जितने हम एथलीट्स की, पैरालंपियंस की भी, जितने हज़ारों एथलीट्स हैं हमारी कंट्री में, उन सब की स्टोरी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था लास्ट, ख़त्म करने से पहले हम तो बात ही करते रहेंगे, बट आपको समझ आ रहा होगा कि हम यू नो what the purpose of the podcast series is and where we are heading to. And see, we are very passionate about sports, specifically passionate about athlete representation, athlete development. And जो हितेश भाई ने पॉइंट बोला अभी कि एक ये बहुत बड़ी बाहर तो मैंने बहुत एग्जाम्पल, फुटबॉल में बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं, मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स और व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, सुनते हैं हमारा पॉडकास्ट या वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि फुटबॉल के बहुत बड़े वो फैंस हैं। फुटबॉल में भी ऐसी बहुत स्टोरीज हैं, players going bankrupt after retiring, right? What are huge bodies like FIFA doing, UEFA doing, उस पर भी हम एक पॉडकास्ट में बात करेंगे कि बाहर देखो हमारा इन्फ्लुएंस है बाहर से, there is no doubt, क्योंकि हमें सीखना है बाहर से। इंडिया डेवलपिंग हम क्यों कहते हैं? डेवलपमेंट का मतलब होता है सीखना, डेवलपिंग करने का भी मतलब होता है कि आप बैकग्राउंड से कुछ सीख के आ रहे हो। हमें सीखना भी है बाहर से, बाहर की चीजें सीखनी भी है, बट वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाके कैसे इंप्लीमेंट करनी है, ये एक कला है। जो आपने वेस्टर्न पॉइंट का जो बात किया, सॉरी, हाँ नहीं, वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंसेस आर एक्चुअली गुड इन्फ्लुएंस, बिकॉज उनके पास वो सिस्टम है, बिल्कुल, एंड इफ यू लर्न समथिंग गुड अबाउट इट, देयर इज नथिंग एंड हमारे जो
जो क्लीशेज हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है, आप ऐसे कल्चर नहीं, तो आई एम नॉट सेइंग टू रिप्लेस माय कल्चर विद देम. There is no way we are going to change the system or change the culture and adapt to that mentality. But उनका जो सिस्टम काम करने का तरीका है, that has to somehow twist and turn within the, to fit the Indians का जो mindset है. बिल्कुल. As an Indian, I would want that system, that professionalism to come. I know for a fact that हम लोग कभी भी उनके systems को लाके यहाँ पे वो success नहीं ले पाएंगे. But उनकी आइडियोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आइडियोलॉजी और हमें अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा. अब आइडियोलॉजी हमारी है, हमारा कल्चर है, हमें अपने एथलीट्स पता है हम कैसे बिहेव करते हैं. बट दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम देयर. एग्जैक्टली. एंड देयर इज अ चैलेंज फॉर अस कि हम उनके सिस्टम ले भी नहीं सकते क्योंकि हम जियोपॉलिटिकली और जियोग्राफिकली उस चीज में है ही नहीं. तो हमारा फिजिकल कंडीशन, वेदर कंडीशंस उस चीज को बिलोंग नहीं करता. तो खाने पीने की जो बातें करते हैं हम, डाइट रिलेटेड बात करते हैं, ट्रेनिंग बात करते हैं, हमारे एथलीट्स काफी लोगों ने, मैं खुद कभी बार बोलता था एंड आई एम वेरी रॉन्ग अबाउट इट. थैंकफुली आई वाज प्रूव्ड रॉन्ग फॉर इट कि हमारे एथलीट्स इतने लीन दिखते हैं बट दे आर परफॉर्मिंग. लीन दिखने के बाद भी ऐसी बॉडी होना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट. द ज़ील इज इम्पोर्टेंट. योर माइंडसेट, मेंटल हेल्थ बोलते हैं लोग. इतना ज्यादा अभी कोविड के टाइम पे डिस्कस करो मेंटल हेल्थ, आप पॉजिटिव बिलीव करो, तो वो पॉजिटिवनेस हमारे इंडिया में बहुत है, लेकिन उसका बोलने का तरीका डिफरेंट है क्योंकि हमारे इतने ज्यादा डाइवर्स कल्चर है. तो उसी को लेके हम काफी सारी बातें कर लेते हैं. तो वेस्टर्न कंट्रीज का आगे जो पॉइंट अपने पास आया था, जो हमने डिस्कशन किया था, तो आई थिंक उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर लेके हम कुछ अलग सिस्टम बना पाए, बिल्कुल, तो जरूरी नहीं हमें कॉपी पेस्ट करना है. कॉपी पेस्ट इज नॉट अ गुड थिंग. कॉपी पेस्ट हो ही नहीं सकता ना क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो उनकी कंट्री के लिए सूट करता है. वेरी ट्रू राइट. हमारी कंट्री नहीं, हमारी पॉपुलेशन इतनी. अब मैं छोटा सा एंड करने के लिए छोटा सा एग्जांपल दूंगा. मैं ऐसे ही पढ़ रहा था और बहुत इंटरेस्टिंग, कोई अमेरिकन पॉडकास्टर था, उसने कोई आर्टिकल लिखा था, मैं पढ़ रहा था. कहते हैं कि हमने, चलो इंडिया ने 4 या 5 मेडल ओलंपिक्स में जीते और वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. हमने करोड़ों रुपए दिए नीरज चोपड़ा को, बाकी एथलीट्स को, बहुत फंडिंग मिली गवर्नमेंट से. बहुत ही इट वाज एज पर मी जो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ वाज एक्चुअली हिस्टोरिकल फॉर सेलिब्रेशन. राइट. इट वाज एनी चाहे सिर्फ आप क्रिकेट के भी फैन हो, आप भी जब हॉकी के भी मैच देख रहे थे आप बहुत ही इलेटेड थे. नीरज को आप देख रहे बहुत ही इलेटेड थे. नीरज को कोई फॉलो नहीं भी करता था, बहुत इलेटेड थे. बाकी जो हमारे एथलीट्स हैं, मीराबाई चानू, लवलीना, उनके भी जब हम चीजें देखते हैं बहुत इलेटेड रहते हैं कि यार जीतेंगे. मैंने एक एग्जांपल देखा है अमेरिका का. वहां पे अगर एक स्पोर्ट में, फॉर एग्जांपल स्विमिंग में या कोई डिफरेंट स्पोर्ट में, अगर उन्होंने सिर्फ 6 या 7 मेडल्स जीते हो, सो दैट इज नॉट एन अचीवमेंट फॉर देम. 10 इज द मार्क. 70 मेडल जीते हो, दैट इज नॉट एन अचीवमेंट फॉर देम. अभी ओवरनाइट नहीं हुआ उनके लिए. वो सालों से एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं जिसमें कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं, कंटिन्यूस चीजें होती हैं. अगर एलए में ओलंपिक्स हैं 2028 में, 2028 में अगर एलए में ओलंपिक्स है, उसका काम 2018, 2016, 2015, 16, 17, 18 से शुरू हो गया. 10 साल से उस चीज का काम चल रहा है. मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. मैं जब जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, यूसीएमबी यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर फुटबॉल बिजनेस, बेस्ड इनसाइड वेम्बली स्टेडियम. वेम्बली स्टेडियम में एफए का ऑफिस है, विच इज द फुटबॉल एसोसिएशन, विच इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंग्लैंड फुटबॉल. वहाँ पे एक मैंने टॉक अटेंड करी. शी यूज्ड टू हैंडल द इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर एफए. तो उन्होंने हमें बताया कि हाउ दे पिच्ड द आइडिया ऑफ having the 2032 euros in England, right, in England Wales. तो वो 2032 में कितने साल बचे हैं अभी? 8-9 साल बचे हैं. ये इन्होंने पिच करा था 3 साल पहले. 11 साल हो गए. 11 साल के बाद का टूर्नामेंट को पिच करने के लिए आपने 2 साल काम करा उस पे, वो पिच पे, कि हाउ यू कैन होस्ट अ टूर्नामेंट. तो मैं बस ये चीज कहना चाहता हूँ, यही स्ट्रक्चर से आता है कि जो काम हम एंड रिजल्ट देखते हैं, बट एंड रिजल्ट तक कंट्रीज पहुंचती कैसे हैं उसके बारे में हम बात नहीं करते. वही स्ट्रक्चर जो है, वही इन्फ्लुएंस जो हमें बाहर का इन्फ्लुएंस लाके इंडिया में आके इंप्लीमेंट करना, और 100% इंप्लीमेंट हो सकता है. मैं नहीं कह रहा 5 साल में इंप्लीमेंट हो जाएगा, चाहे 20-25 साल में हो. बट अब इंडिया, इतनी पॉपुलेशन है, इतना टैलेंट है, इंडिया को क्यों सिर्फ 5 गोल्ड, 5 ओलंपिक मेडल, 6 ओलंपिक मेडल की कंट्री बनाते हैं? हम फ्यूचर में 30-40 मेडल भी इंडिया जीत सकती है स्पोर्ट्स में. That's definitely the target, Aman. Yeah. Yes, even as a professional हमें भी वो बिलीव होता है, या एथलीट भी बिलीव करते हैं कि मेरा वो मेडल मिस हो गया, अगली बार मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगा. तो जो इवन द एथलीट की जर्नी और स्पोर्ट्स की जर्नी सेम ही है.
You cannot build an athlete overnight in 2 years and ask him to win a medal at the Olympics. That is now not how it works. In the human body doesn't work like that. Yeah. उसमें इतना ज़्यादा आपके पास स्ट्रेन होता है और रेगुलर कॉम्पिटिशन खेलते हो इंजरी होती है, डैमेज होता है, बट एथलीट्स अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं. एज अ स्पोर्टिंग नेशन, इफ यू वांट टू डेवलप स्पोर्ट इन इंडिया, इट्स नॉट अबाउट कि मैंने खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज कर लिया, मैंने नेशनल गेम्स इन्वॉल्व कर लिया, या मैंने कोई स्टेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लिया तो मेरा हो गया. नहीं, आपको वो स्ट्रैटेजीज कहाँ की गलत हुई, उसका मॉनिटरिंग, उसका रिजल्ट, उसका अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, वो आपको नोट करना पड़ेगा. एंड इट हैज टू बी वेरी रियल. अगर आप अपने से झूठ बोलोगे नहीं यार ये तो मैंने अच्छा ही किया था, दैट इज हाउ इट वर्क्स. आप एक एक्सटर्नल फीडबैक ले लो, आप एक रिव्यू सिस्टम बिठा लो, आप इंटरनल कम्युनिटी मीटिंग ले लो, या आप मीटिंग ले लो. मीटिंग is not an important, but the result and the discussion in that meeting is really important. You can take a meeting for 45 minutes and get no result out of it. You can take a meeting for 10-15 minutes and get the whole idea implemented in 15 minutes with the right team, with the right people, and the right mindset. तो एथलीट की जर्नी और स्पोर्ट की जर्नी अगर सिमिलर लेके चल रहे हो ना, फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव और डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, यू विल बी इन द राइट स्पेस. और इट्स नॉट कि हम अपना बूस्ट कर रहे हैं क्योंकि वी आर द गाइज, भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट उसमें आपका जो पैशन है, कोई भी अगर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स में काम करना चाह रहा है, योर पैशन एंड नॉलेज अबाउट द स्पोर्ट विल टेक यू देयर. दैट इज व्हाट आई हैव बीन टॉट एंड आई हैव डन इट ऑल माय लाइफ. मेरे कोच ने मुझे वही चीज़ बोली थी, मेरे फादर ने भी वही चीज़ बोली है, मेरे प्रोफेशनल काफ़ी सारे दोस्त हैं इंक्लूडिंग अमन, सीरियस बकवास करते हैं काफ़ी, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं. मेरा फ्रेंड सर्कल भी वैसा है, हमारे फ्रेंड सर्कल्स भी ऐसे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कलीग्स हैं, दे आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट इट. कोई सोशल मीडिया के लिए पैशनेट है, कोई मीडिया के लिए पैशनेट है, कोई एथलीट मैनेजमेंट के लिए है, कोई गवर्नेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि यू कैन एक्चुअली सिट एंड लर्न irrelevant of the age and the kind of family background we come from. But the passion remains the same, the understanding of the sport remains the same. We are actually investing a lot of time in understanding कि चल क्या रहा है. बिल्कुल. वही है ना कि क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, वही है. इसमें बस ये क्या चल रहा है कि हमारी कंट्री के स्पोर्ट में क्या चल रहा है. Exactly. And that is the we come from very different backgrounds, what we're working in right now, what we worked before, and that is what we're planning to share those experiences only and talk about the relevant points, which I think, I hope आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो. हमने काफ़ी देर सीरीज बकवास करी है, एंड क्या चल रहा है में जो सीरीज बिल्डिंग द नेशन थ्रू स्पोर्ट, उसमें फर्स्ट एपिसोड दिस वाज द स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एपिसोड, बट डेवलपमेंट की बात हमारे सारे एपिसोड में होगी क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है वो. सो थैंक यू सो मच हितेश. वापस मुलाकात होगी वापस अगले एपिसोड में, एंड और कंटेंट आते रहेगा, तो आप प्लीज शेयर करो अगर आपको अच्छा लगा. नहीं भी अच्छा लगा तब भी शेयर कर दो, क्या पता आपके किसी फ्रेंड को अच्छा लग जाए.